Okay, guys, so recording has already been started. So, welcome all to this channel. This is our channel, and the name of this channel is Booth and Banter. तो हम चारों सब पता ही है कि हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड इस इंटेंशन ये था इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का इज़ वी ऑलरेडी हैड सो मेनी डिस्कशंस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप बट इसको एक लाइव स्ट्रीम करते हैं बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें भी अपनी नॉलेज इन्हांस करने का, अपने ओपिनियंस शेयर करने का. So the idea behind this channel is we'll have one host with every stream. We'll try to do the stream every weekend. और आज का हमारा होस्ट है पूर्वानंद. तो नाम तू इंट्रोड्यूस करेगा. Welcome aboard on this Both and Mentors. Thank you guys. So I am your host and these guys are my guests जो कि मेरे खुद के दोस्त ही हैं as Sharang said. So today we'll be discussing on this topic जो कि बहुत common है. It's spreading like a disease, in fact, if we can say in today's world. That's herd mentality. Luckily, I don't think any of us are affected in that scale by that. So I guess we are possibly the right people to talk about it. So the first point is before we move to the first point, I believe I'll take all the names. He's MD Aslam Ali. I call him MD. A very simple reason. MD is his initial, so it's quite easy for me to say that. The second guy is Shubham Maurya, but we call him Sean D'Souza. It's a long story. Someday we'll tell, like why we call him Sean D'Souza. It's a I guess separate if we debate in itself. talk on that, yeah, एक पूरा अलग से वीडियो बन जाएगा. And third one is Sharang. We call him as Sarup. Very simple, like MD. S is the initial and Sarup is his surname. Sometimes we call Shiru as well, right? Why, Yeah, why my that's- name is No one different calls then? me Sheru. Why you This is the guys first time. call me by Sheru. Don't Yeah, try to be people smart. call, but sometimes people might get offended as well. So I guess we'll why move to the in my topic, case it boys. is different? For our viewers, we all have our own story. We all have our own past, जो कि हम चारों को आपस में पता है. Viewers को नहीं तो हम पता धीरे धीरे हमारे. सब बता ही तो देंगे. हम धीरे धीरे Viewers will get to know if they're Viewers will interested get to in know, knowing yeah, why Shubham Maurya, Sean D'Souza. I हमारे guess we'll let them know. आज स्टार्ट कर दें भाई अपूर. First Yeah. topic. So the first topic is Start. there FOMO? FOMO is- नहीं है. तुम मेरे को It Are याद was people क्या brand मेरे को याद conscious? रहेगा. Yes, मेरे को- brand yeah, conscious. people brand Are conscious. people brand conscious? So because of which they follow herd mentality. So I'll give you an example. Suppose एक T-shirt है. अगर ये plain है और उस पे एक logo है, तो the price tag changes. The people, their mindset it changes. So what do you guys say? Like, are people brand conscious according to you guys? मैं go through कर रहा था when we decided to discuss on this topic, and very cool statement that I got from one of the source was people don't buy products, they buy identities. And तेरे एग्जाम्पल से ही जैसे कोई टी शर्ट, अगर नॉर्मल टी शर्ट भी मैं उसका लेबल चेंज करके किसी अच्छे स्टोर में लगा दूँ, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव. एंड जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, but the price tag and the status that it will bring to them. तो वो एक सबसे बड़ा फ्लॉ है आज की डेट में. But People are running like what they don't have, but they are pretending, right? They have, so that they can fit in other. Basically, you're saying they just want to be someone else. Like, Yeah, they want to fit in someone else's shoes, right? They don't. means they feel they're not a part of the society yet and they just want to be accepted. They feel if they'll act a certain way, dress a certain way, wear a not certain that brand. like किसी भी हद तक जाने के लिए like नहीं, they but are- It's ये भी not तो only है. about status. When we are buying, let's suppose टी-शर्ट की बात हुई यहाँ पे, तो मल्टीपल ब्रांड वी हैव, राइट? सस्ते से लेके महंगे तक है हमारे पास. अगर हम जाए मिंत्रा से तो उनका खुद का ब्रांड है रोडस्टर, राइट? चीप भी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है. It will- सिर्फ चीप और एक्सपेंसिव की बात नहीं है. मतलब
मैंने ये भी देखा है, इवन एक्सपेंसिव स्टफ्स आर क्वाइट गुड इन क्वालिटी। फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी ब्रांड है मैटर मार्क्स एंड करता है। स्पेंसर, तो उनके जितने भी कपड़े हैं वो दे आर मेड इन बांग्लादेश। और जितने भी मेजोरिटी जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, देर इनके कपड़े मेड इन बांग्लादेश हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट्स आर गुड, बट वो ये जो उनका कॉस्टिंग है, जो उनकी प्राइसिंग जो सेट करते हैं ना वो लोग, एंड उसमें मार्जिन जितना ज़्यादा रखते हैं, मार्जिन का हम सबको पता ही होगा, हम सबने शार्क टैंक देखा है। तो हर एक प्रोडक्ट पे लोग कितना मार्जिन रखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 50% और हाइट मोर देन दैट। तो उसकी वजह से जो उसकी वर्थ है ना प्रोडक्ट की, वो गिर जाती है। बट द क्वालिटी इज़ गुड। मैं नहीं बोल रहा कि एक्सपेंसिव चीज़ें हमेशा गलत हैं। और सिर्फ स्टेटस की बात नहीं है, इट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अगर कोई, मैं शूज़ लेके आया हूँ कोई बहुत एक्सपेंसिव, तो मेरे को एक अपने आप में एक सेल्फ अचीवमेंट फील होगा दैट आई हैव अटेन्ड दिस। और मेरे को कुछ है, मतलब मैं एक स्टेटस पे आ गया हूँ। तो डू यू थिंक द कंपनी जो इतना मार्जिन रख रही है, दे आर प्लेइंग विद पीपल्स दे माइंडसेट आर बिकॉज दे नो आर साइकोलॉजी, आई थिंक इट्स साइकोलॉजी। नहीं, उसके पीछे बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि डेड स्टॉक, दैट्स द मेजर रीजन व्हाट दे आर फेसिंग। मार्जिन उनका रखने का रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि कम भी बिके तो उनका मतलब मुनाफा निकल जाए, प्रॉफिट, राइट। क्योंकि लास्ट में क्या होते हैं, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज हो, फैशन डे बाय डे चेंज हो रहा है, राइट। लेट्स हम्म सपोज आज तूने नैरो जीन्स पहनी है, अब देख रहा है कैसी जीन्स आ गई है, हम्म पुराने वाले की मीन्स सेलिंग कम हो जाती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मार्जिन ज़्यादा रखे और उसको बेच दें। बट वो कंपनी पर्सपेक्टिव हो गया ना, उससे हाँ, इसमें ऐसे। लोग हाँ, का जैसे माइंडसेट का पर्सपेक्टिव, जैसे तूने आसपास देखा है तेरे जो कोलीग्स होंगे, जो तू था, जिन भी कंपनीज में काम किया है, कि या जहां पे भी रहा है, कि एक प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए खरीदा है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का है, और दूसरा कोई रीजन नहीं। कलर पसंद नहीं है, क्वालिटी आई डोंट नो, क्वालिटी अगर ब्रांडेड है तो मोस्टली अच्छी ही होती है, बट दे डोंट लाइक द कलर और द डिजाइन, बट दे स्टिल बाय इट just because it's a certain brand. So राइट। guys, I think we can move to our next segment. What do you say? FOMO? श्योर। Yeah. So जो मेन रीजन जो इनसे लोगों से ये काम करवाता है, दैट इज फोमो। जेनजी में टर्म बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, दैट्स फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो इट्स ट्रू। डू यू गाइस फील कि उन्हें लगता है दैट इफ मान लो मेरे 10 दोस्त एक ब्रांड के कपड़े या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो दे फील लाइक आई एम लेस एलीट, या आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, ऐसा कुछ जो उनसे ये काम करवाता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड हम्म सेलिब्रिटीज़, ये लोग मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं कुछ एक स्टेटस को, दैट दे आर मस्ट हैव थिंग्स दैट ऑल अदर न्यू कमर्स शुड हैव। मैं एक देख रहा था वीडियो, मैं नाम नहीं लूँगा शो का नाम उसका। सो देयर वाज दिस न्यू कमर गर्ल, एंड वन होस्ट वाज देयर। सो द होल, देयर इज अ स्टोर कॉल्ड प्राइमार्क इन यूरोप, जो सेल करता है बहुत स्टैंडर्ड, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के कपड़े इन लो बजट। तो he was like, why you were wearing Primark on that event? Because you're coming from a background of a film star, your father is a film star, but why you were wearing that Primark? So people are more concerned about they're defining status, they're defining identities. I mean, उनको ये फोर्स करा जा रहा है कि आप ये पहनो, you should not wear this नहीं, तो brand, आपको लगता not है even अगर about the जैसे quality. बड़े सेलिब्रिटीज जैसे मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा आपने, ही वेयर्स क्लोथ्स विदाउट हाँ, लोगोज ऑन इट, राइट? तो आपको लगता है अगर मान लो कुछ नॉर्मल लोग हैं, अगर वैसे प्लेटफॉर्म पे बिना लोगो या बिना ब्रांड्स के कपड़े पहन के चले गए, तो विल दे फील लेस ऑफ अ पर्सन और लेस ऑफ एन ये इंडिविजुअल? मेरे को ज़्यादा लगता है कि ये इंडिया में ही है भाई। आई मुझे वाज लगता आई है ये वाज इन कॉन्फिडेंस लेटेगेनी की फॉर बात है। 1 मंथ, और वहाँ पे मेरा जो मैनेजर है, उसकी हम्म सैलरी कहीं ज़्यादा होगी मुझसे, हम्म एंड ही इज़ लिविंग इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो एटमॉस उसकी भी बात है, बट वहाँ पे लोग रिपीट करते हैं कपड़े, एंड अच्छा। दे टेक क्लोथ्स एज अ बेसिक नेसेसिटी। मतलब अच्छा होना हम्म चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तुम बेकार पहन रहे हो, बस एक कपड़े हम्म डाल, बट वेरी बेसिक, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है उनकी कपड़ों की। ऑब्वियसली
कोई वो नहीं होता है, मतलब वर्थ भी होता है उसमें, एक डिफाइंड होता है, एक हर चीज़ का एक मतलब वो है, कैपिंग है कि अगर कोई जीन्स है या कोई टी शर्ट है तो वो उसकी एक कैपिंग है। अब ये नहीं कि टी शर्ट 500 की भी है और टी शर्ट 20,000 की भी है। तो वहाँ पे वैसा नहीं था। मेरे को लगता है इंडिया में ज़्यादा हमने कैटेगराइज कर वो दिया है। उधर कंफर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, हाँ, ऐसा कह रहे यस हो? यस। अच्छा। तो यहाँ पे एक मैं अगर रियल एग्जांपल दूं, तो एक बच्चा था यहाँ पे, हम्म। तो उसके कुछ दोस्त थे। उस, जो दोस्त थे वो रिच फैमिली से थे। अच्छा। वो बंदा था, वो बंदा इतनी रिच फैमिली से था नहीं। तो वो दोस्तों के साथ एक संगत में पड़ गया, वो कैफे पब, वीकेंड तो वीकेंड, वीकडेज में भी, एंड आफ्टर ट्यूशन भी। हम्म। उसने मम्मी के मतलब क्या क्या नहीं बेच दिए उसके चक्कर में, जस्ट वो शो। अच्छा। वही आउट ऑफ पॉकेट गया ना अपने, वो अपने जितना उसके एग्जैक्टली, पॉकेट हाँ। अलाउ भी नहीं करती है, उससे ज़्यादा उस चला गया। बट तुमने आजकल ये न्यूज़ सुनी होगी, इंस्टाग्रामेबल कैफ़ेज़ होते हैं। बिल्कुल। मतलब क्या बकवास चीज़ है जिसका इंस्टाग्रामेबल कैफ़े। फूड क्वालिटी इज क्वाइट फूड लो क्वालिटी लोग एंड देखते भी नहीं, वो बस इंटीरियर्स आर वेरी गुड। खाना आया, ठंडा बट खाना, इट इज फोटो इंस्टाग्राम खींची। कैफे। इंस्टाग्रामेबल कैफे वो तुम्हारा एम्बियंस और बैकग्राउंड, मतलब एक तुम्हें वाइब देंगे कि तुम वो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सको। जो आजकल फेमस होता है, लोग जाते हैं कॉफ़ी की फ़ोटो खींचते हैं, है ना, कैफ़े के बाहर फ़ोटो खींचते हैं। तो एक ये ट्रेंड बन गया, एक कैटेगरी बन गई है इंस्टाग्रामेबल कैफ़े। तो ये बहुत मतलब, इंस्टाग्राम के चक्कर में, अपने हाँ, फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोग ये हरकतें कर रहे हैं। करते हैं। हाँ? हम्म। चल वो तो ठीक है, जिनके पास पैसे हैं हाँ तो वो हम्म। कर सकते हैं, बट जिनके पास हाँ, शो ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है अच्छा मेरे ख्याल पॉइंट से। बोला एमडी ने, कि शो वो ऑफ सही है जिनके पास पैसे हैं, हु कैन अफोर्ड दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट कई, जैसे इसने कहा कि मैंने देखा है, हम्म। सैलरी आती है शुरू के 20 दिन, दे स्पेंड ऑन ऑल दिस एंड यस। एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर लाइक, भाई पैसे दे दे, भाई ये कर दे, वो कर दे। तो आई गेस अब इट्स अगर नॉट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वर्थ। भी जा रहे हैं, उसमें एक का अगर उतना नहीं है, बजट अलाउ नहीं करता, and you're forcing ना, you're forcing him. What do you guys ये think of टॉकिंग ऑफ iPhone? ट्रैवल। iPhone जो अच्छा। हर साल एक नया वर्जन आता है। I mean, our company is हाँ। playing with the customers here. कौन सा फोन एक साल में खराब हो रहा है आजकल? वो मीम में देखा देखा नहीं था, 70 और लाइक मोर देन बट 80 दैट, वो तो आईफोन। उससे ब्रांड कॉन्शियस वाले से हो जाएगा ना रिलेट ज्यादा। हाँ, तो ब्रांड फर्स्ट, our first topic was brand conscious only, तो लोग इसमें भी एक पीछे तो उस भाग ही रहे हैं ना। ये आईफोन वाला तो इट्स मोर ऑफ ब्रांड कॉन्शियस एंड फोमो बोथ। हाँ, लाइक कई वही तो मैं रील्स बता देखी रहा होगी था। ना तुमने, कि इफ द गाय इज अ 10 बट ही यूजेस एन एंड्रॉइड फोन, देन गर्ल्स आर लाइक नो नो वी मतलब डोंट कौन सा वांट फोन इट। आज देखा की था, डेट में एक साल में खराब हो रहा है? आईफोन 17 आ रहा है, आप देखना कितनी वही लंबी लाइन मतलब, वही लगेगी। एक बट लोगों को अपग्रेड ही अपने करते आप हैं को मोस्ट। एज अ वो दिखाना है ना, सो ज्यादा अगर नहीं है तब भी दिखाना है कि हाँ हमारे पास है, हाँ, उसे यूज़ भी नहीं ताकि लोगों करते को हैं लोग। अटेंशन मिल सके उस चीज को लेकर। आई थिंक तो for most of the iPhone users, it's only about good camera and that's it. टेंशन। हाँ, स्टेटस जो मिलेगा। मैंने तो ये भी देखा है, लाइक देयर आर पीपल हु लव ट्रैवलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग, they don't really want to, but just because फोटोज चाहिए हम्म, और पहाड़ वाले बिना कैप्शंस प्लान डालने हैं। करे चले जाते हैं भाई। बिना प्लान के they go unnecessarily, they हाँ, don't actually enjoy, and they just go to those places which are, केदारनाथ, गाइस केदारनाथ ये चले वही जाते बंदा हैं। है, हमारा दोस्त अपूर्व आनंद। नहीं अप्रूव नहीं को तो ट्रैवलिंग पसंद है भाई। वॉमिटिंग नहीं नहीं, बट ही डोंट मेरा लाइक इज टू फॉर द ट्रैवल। रिमेंबर एक्सपीरियंसेस, नैनीताल माइन इज प्योरली फॉर द एक्सपीरियंसेस। मैं कभी इंस्टाग्राम के लिए ट्रैवल नहीं किया, नेवर एवर। ट्रू ट्रू। अभी आई केदारनाथ जस्ट का भी वांट, इसमें हुआ था, कितने लोग जाके फिर वहां पर उनको रूल ही बनाना पड़ गया हाँ कि दे वर जस्ट मेकिंग रील्स राइट, वहां गए हैं दैट्स गुड, बट यू आर जस्ट मेकिंग रील्स वहां पे जाके। गेन द फॉलोअर्स। हाँ हाँ मतलब ट्रेंड में है कि चलो फॉलोअर्स ठीक है, भी नहीं, बस वो एक वरना दिखाने के लिए कि हम भी प्री गए, एवरीवन इंस्टाग्राम इज याद है गोइंग। आप लोगों को, कि आई डोंट थिंक यंगस्टर्स इतने केदारनाथ जाते एक्चुअली थे। आज की जनरेशन क्या है कि वो अंदर से ज्यादा दुखी है, बट शो ऑफ करते कि हम खुश हैं, ठीक है, तो वो सब ये सब चीजें करते हैं ताकि उनको अटेंशन और ऐसा दिखा सके कि वी आर ऑल आल्सो हैप्पी, राइट।
Hmm. but actually what is happening from inside, they are not happy at all. So you feel people are more people feel ki looking more happy is actually more important than being happy from I inside. don't know, but nowadays trends like this, right? If you see, they're showing off, but actually they are not that much happy, or their lifestyle is not रियलिटी that. उनको क्योंकि पता होती है ना अंदर से कि हाँ, हम लोग फंस रहे लेकिन वो हैं एंड डरते हैं, लाइक यहाँ पे भी ये वाला फिर आ जाता पॉइंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि वो अगर दुखी रहेंगे लोगों को, तो अच्छा हाँ, it will be sad मतलब. तो लोग दूर जाएंगे उनसे, राइट? सो दे डोंट वांट Hmm. टू पीपल टू गो अभी अवे फ्रॉम। अभी तो हम ये सब सोशल चीज़ों पे बात कर रहे हैं. अभी कुछ टाइम पहले उसका भी आया था बहुत, क्रिप्टो करेंसी का. वो है भाई मतलब, and everyone was having this story of some friend of his or her who is who's got his amount got doubled या फिर हाफ हो गया रातों रात. सबके पास एक अपनी एक स्टोरी होती थी, and everyone started investing because it was very easy to invest बिलीव। in crypto. तो without any knowledge, और उसमें वो सब एक हर्ड की तरह लोग चले गए उस पर. एंड काफ़ी लोगों ने लॉस भी झेला, किसी को प्रॉफिट भी हुआ होगा, बट सही अगेन तो हमारा नोन भी अब नाम लेना सही सही नहीं है बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी फॉर श्योर. हाँ, मैं उसको भी इतना कह रहा ना, कह उसको सकता हूँ. नॉलेज के साथ इट्स ही स्टिल कंटिन्यूइंग इट. अभी ऐसे कितने लोग हैं हाँ जो हाँ, पहले ही क्रिप्टो इज करेंसी डूइंग, में ही इज करा हुआ एक्चुअली. क्रिप्टो. मैंने भी किया था, एक शिबू करके करेंसी थी. मैंने भी इन्वेस्ट किया था वही, क्या हुआ लेकिन पैसों का? कुछ क्या नहीं, हुआ मैंने लगाए 100 रुपए थे. मिले पैसे वापस क्या हुआ उसका. पता नहीं, याद नहीं. कॉलेज टाइम पे तो होता था हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तभी. एक मेरे दोस्त का फ्रेंड भी था, उसका किस्सा सुनाना है अभी क्या. सुना दे आई यार. थिंक वी शुड मूव हाँ विदाउट दैट टॉपिक। जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उतना सुना दे. गाइस, हाँ, डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं. नाम तो ऑब्वियसली नहीं लेना है क्योंकि इट विल बिकम वे टू ऑब्वियस. बट द So स्टोरी I वी guess हैव he ऑलरेडी went to डिस्कस्ड Bali, ना. right? He हाँ. went to Bali and he just went to the places for pictures, right? I think he Just because. enjoyed as well, but yes, the हाँ, primary reason was to show the world that he's having fun, and because no one will post 100 pictures after any travel of on 5 or that 6 tour of days, Bali, right? जहाँ and पे that too in segments. I hope you do not send this link to him, No, no, ठीक है? I'm not sending this link to anyone. This is just for But our it's not practice. necessary like it's my friend only. It may be Shubham, हाँ. Sean's friend, right? It may Yes. be MD's friend. It may be our common friend. किसकी बात कर रहे हो? Who went अब Bali? वो बताएंगे. छोड़, USIT से है थोड़ा बहुत लेना देना. Let be, है ना? Yeah. No idea. विल जॉइन हिम इन नेक्स्ट कॉल. नेक्स्ट कॉल में कोशिश करेंगे उसे, है ना. और आजकल मेरे को ये भी लगता है कि people are accepting the fact, that they're doing it reluctantly. For example, अभी जैसे adult jokes जितने भी ये वायरल होते हैं या फिर shows में, तो एक होता है ना, किसी से तुम डिस्कस करो कि यार this should be banned, this is not allowed. No, why? This is real. I mean, it's okay if it's not censored. और वो लोग मतलब सपोर्ट करते हैं उसको ज़्यादा probably open है। because कुछ probably लोग ये because नेचुरल होते हैं जिनकी सोच ही वैसी होती है, नहीं, ठीक मेरे है. ख्याल से तो ये है कि गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशन इज बीइंग कूल नाउ. अगर लोगों को ऑब्वियसली देख, लोगों को पसंद नहीं आएगा एडल्ट जोक्स, अगर हमारी जनरेशन की बात करें, हमसे जो पहले की जनरेशन थी. बट अब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इज बिकॉज कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट इट, हाँ दे मतलब वांट टू एक्चुअली चेंज. मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ, मेरे को सिटकॉम ज्यादा मजेदार वो एक लगता है. अलग डिस्कशन है. ये ट्रेंड बनता जा रहा है. हाँ, एवरीवन फॉलोज द ट्रेंड ओनली. अगर हाँ दिल से सही लगे जाना है तो जाओ, बट कुछ नॉट जस्ट फॉर द कुछ सेक अच्छे ऑफ हैं. गोइंग. मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो एडल्ट जोक्स लोग एक्सेप्ट करने लगे ना इन वेब सीरीज, इन स्टैंड अप कॉमेडी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी समवेयर. क्योंकि अंदर उनको पता है कि गलत है ये चीज़, बट लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मेरे को भी सपोर्ट करना है बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन. समझ रहे हो? तो एक वो चीज़ भी हर्ड मेंटालिटी का पार्ट है कि लोग अपना कॉन्शियंस भूल गए हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बट इसको वी कैन नॉट इवन कॉल इट फेक. हाँ. इट्स जस्ट दैट उनका दिमाग
उस हिसाब से सोच ही नहीं बट पा रहे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी ना, कि तुम जो लोग हाँ, इट्स अ हर्ड हाँ मेंटालिटी कंप्लीटली कि आप अपने माइंड को दूसरे डायरेक्शन में सोच ही नहीं हो। सही मान बात लो है। किसी ने बोला ये, तो बस उतना ही। अब भाई लेफ्ट राइट भी थोड़ा देख सकते हो। एक तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ शुभम की। Has that something to do with herd mentality or it's या completely off topic? तुम्हें वॉइस नहीं आ रही होगी, ये शुभम है। हेलमेट पड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस लिफ्ट में आ रहे हैं वो कुछ भी बिना सोचे समझे इस हेलमेट के पहले आ रहे हैं। अब जैसे लोग आ रहे हैं, सब हेलमेट पहन रहे हैं। सबको पता है हाँ। शुभम को लगा कि सबको हेलमेट पहनना होगा, तो शुभम ने भी हेलमेट उठा लिया मैं क्यों रह गया? और शुभम ने हेलमेट पहन लिया। नहीं, बट शॉन का उस दिन मैं मान गया था भाई दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी। जब याद है वो सीपी वाला इंसिडेंट जो हुआ था, डू यू थिंक शॉन वी शुड टेल दैट या लीव इट? No, bro, no, nothing. Don't have to. शुभम को हाँ? फ्लैशबैक्स आने लग गए I'm बहुत not सारे। discussing our अबे life. बट अच्छा यार कि काश मैं किसी और का नाम लेके बोलता यार, बट दैट वाज फनी डूड। नहीं, I don't know actually. यू डोंट नो। शुभम को कह रहे कौन Remember सा वाला है, कौन सा Go ahead वाला and है। tell that for 2 rupees? You remember? You stopped something. it. Hope you remember. You controlled your pressure just because they were Okay, asking okay. for 2 I rupees. got it. अबे people kept convincing him, right? Right? कि भाई कर ले, but he was like reluctant, no. आज का हमारा बैंटर मेरे को लग रहा है हर्ट मेंटालिटी से ज्यादा कैफे बैशिंग ज्यादा होता जा रहा है। ऑफ टॉपिक चले गए हैं थोड़ा, नहीं एडिटिंग काफी करनी पड़ेगी। हाउ कैन वी एजुकेट किड्स टू अवॉइड फॉलिंग इनटू हर्ट मेंटालिटी? असलम, बता शायद भाई, अभी तेरे नहीं घर में बता। किड्स है, तूने कैसे एजुकेट करेगा? एक आने भी वाला है। First and foremost, think what you have to do. मोबाइल ही मत दो उनको। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, पॉइंट पॉइंट में दम है भाई, क्योंकि ये हो नहीं सकता ना। फोन देख के ही आता है, पता है। यार मेरा भतीजा बोलता है पीछे देख रहा कहाँ से आता है? बट आजकल के बच्चों को मोबाइल से हटाना वो बहुत गंदी चीज, इम्पॉसिबल, मोबाइल तो बहुत है। गंदी चीज। इम्पॉसिबल क्यों है भाई? बिकॉज ये पेरेंट्स को अरे आज एक सुन, तरह से एग्जैक्टली शुभम आराम क्या, देता है, ठीक है, बच्चों को दे दे तो पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है शुभम। आजकल ये हो रहा है कि होता है क्या, पहले जैसा नहीं है दादा खिला रहे दादी खिला रही है। वो आजकल क्या होता है, सब बिजी अपनी लाइफ में। हाँ, आधे बंदे जॉब कर रहे हैं अब एटॉमिक आजकल। फैमिली में सबको बट रहना तुम है। किस एज तक कंट्रोल कर सकते हो ना, अगर मोबाइल वाली बात है भी तो तुम उसके बाद तो भाई नेसेसिटी बन जाएगा जब मोबाइल फिर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक बार लर्निंग एज होती है वो शुरू के 10-15 साल ही तो होती है। एग्जैक्टली, बट अगर तू स्टार्टिंग में थोड़ा चीज़ों को अवॉइड करना सिखा देगा कि मोबाइल मत चलाओ, ये मत करो, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट 10 इयर्स में भाई वैसा सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है इन्फ्लुएंस होते हैं मुझे लगता है मीडिया एंड एड्स, है ना। मुझे लगता किसी है भी बच्चों को प्रोडक्ट को हमें। लेके मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ बोल। किसी भी ये वाली तू तो बोल। ये वाला ये कहाँ रील, दे रहा है ये तू रील उनको? जाएगी भाई, ये रील एडिट होके जाएगी, ये वायरल होगी। अर्जुन कपूर जैसे। हाँ। तो मेरा मतलब ये है कि उनको ये समझाना चाहिए कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट एंड ये मार्केटिंग जो है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं वो तुम्हें बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। मतलब बच्चों को सीख के समझ में आना चाहिए, दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, दे आर प्लेइंग विद योर ब्रेन। अगर कोई कोई भी चीज़ है, मैं आजकल देख लो, वीडियो गेम्स कोई ले लो, ट्रेंड में कितने हैं, लोग बाहर जाके खेलना ही छोड़ दिया है। वो वीडियो नहीं, भाई आज उसकी सीडीज कितनी महंगी एक्सपेंसिव आती हैं। आई थिंक आजकल स्कूल वाले भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब करवा रहे हैं जिसमें वो फालतू के पैसे लेते हैं। पेरेंट्स को लग रहा है बहुत अच्छा है, बच्चे का माइंड मतलब ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। वो पैसे के नाम पे बच्चों के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं इट्स इनडायरेक्ट। अ मार्केटिंग गिमिक। एग्जैक्टली, एक एक बहुत फेमस कोट है, टुडे यू आर इज ट्रूअर देन ट्रू एंड देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु इज यूअर देन यू। तो अगर लोग ये सोचे कि यार सामने वाला है ठीक है, हो सकता है मेरे से बेटर होगा, 10 क्वालिटी हो सकता है 9 क्वालिटीज में मेरे से बेटर हो, बट जो एक क्वालिटी मेरी होगी दैट मेक्स मी। तो बोला जाता है ना, डोंट ट्राई एंड बी डिफरेंट, Yes. जस्ट ट्राई एंड बी योरसेल्फ, एंड And इफ it's स्टिल okay यू to आर be नॉट different. डिफरेंट, It's okay to दैट be मींस देयर different. इज अ प्रॉब्लम विद यू। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? It's हमें okay बच्चों to को be different. मेंटलिटी अगर अवॉइड बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि if you have a different opinion, you're sitting in front of 10 people and you have a different,
you're against everyone, then it's okay. You don't have to follow. You just need to have the confidence on your अरे decision and हम your उनको opinion. एजुकेट कैसे करेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला, कॉन्फिडेंस. आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस Confidence. is what makes people, follow Follow. Yeah. the एग्जैक्टली lead, को ये of पता others. मेरे को ये पता है, यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास, बहुत ऐसी फैमिलीज हैं, उनको उनके मम्मी पापा को पता ही नहीं पढ़ाई के बारे में, राइट? तो क्या करवाया जाए आगे, क्या ना करवाया जाए, Hmm. और अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिलती है. समटाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरा फायदा हो रहा है, मैंने कहीं भी घुसा दिया, वो तो घुस जाते हैं. अब उनको मतलब कैसे एजुकेट करें, उनको कैसे समझाएं ये गलत है, ये सही है, कब कैसे डिसीजन लेना चाहिए? तो वो तो गाइडेंस से ही होगा, उसमें तो कोई एक आके गाइड करेगा, बट दैट इज समथिंग एल्स. उसमें किसी को फॉलो करना वो तो एक पॉजिटिव यूज केस है ना, कि आप किसी एक गाइडेंस लेके आप योर एक्सपीरियंस देना है तो हाँ. बच्चों को बाहर निकलना सिखाओ, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, दिक्कत सबसे ट्रैवलिंग पहले सिखाओ, ये है. उनको छोटी उम्र से ट्रैवलिंग सिखाओ, सबसे बेस्ट है. उनकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. जब आप देखते हो ना दुनिया कितनी बड़ी है और आप यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिग वर्ल्ड, यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट, सेल्फ तो फिर लर्निंग. ईगो वगैरह ये सब आपका बहुत साइड हो जाता है. यू लूज ईगो, यू जस्ट बिकम योरसेल्फ, और फिर इट हेल्प्स क्वाइट अ बिग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई गेस. आप जितने भी बड़े लीडर्स देख लो, जैसे बीट लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक देव जी देख लो, एवरीवन दे ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट. एंशियंट टाइम से अभी तो चलो, some people do it actually for just the learning thing, but some people do it for photos. I feel photos are okay, it's important, but experiences are priority. Photos are just like a cherry on the top, कि हाँ ठीक है अपने moments capture कर लिए. When you're 40 50 you can go through all of that. Yeah, this is where I went, this is how I lived my life, this is how I enjoyed. It's good, for your future. So basically we need to teach them to be original and not be trendy. Obviously, don't be different, just be yourself. And still, if you are not different, that means there's some problem with you. We can have The next discussion. video is going to be our first video on YouTube, right? नहीं, this is our first अबे video. this is our first video. Let it इसमें be, editing man. करनी है कर लो भाई, but just publish it. मैं ऐसी कैसी डाल दूंगा आगे पीछे का. अबे थोड़ी editing कर ले. मैं अगेंस्ट अबे this is very raw, very very raw. I am against this video to upload on YouTube.